Kareena, this is Sana from Indian Express. While you've had some really great dance numbers in your career, can you just tell us one dance that was really challenging for you and one where you enjoyed the most? For me, actually, dance has always been about, it's like an expression of energy, of having fun. When you love it and you're enjoying it, I think that's what it's called dance rather than, perfecting your moves. The right amount of energy, the right amount of expression is so important. And especially in my career, my songs, I've been lucky enough to enjoy all my songs. Whether it was Yesh Khai from, Jab Bhi Met or Moja Hi Moja, which Bosco and me have done together, or whether it was Chammak Challo. I mean, right through, I think it's always been more about the energy, the positivity, and just having fun with, the word called dance. Yeah, this is Dharani from Teddy Chakra this side. Kareena, I wanted to know that how much have you binge watched reality shows, especially dance reality shows, and which has been your favorite? And secondly, how much you guys are going to miss Master Judge Mithunda? Well, of course, we would definitely miss him. Never know, we might just have him back for an episode, let's see. But I think that Dance India Dance has been, like I said, a platform for the Mango people, for the Aam Janta. I've watched it on and off. I think it's been one of the initial dance shows, it's been one of the first. Actually, I loved my episode when I went with Mithunda because I've always been such a huge fan of his that actually, if I may say so without, it's not just because I'm judging Dance India Dance and without offending anyone, but actually Dance India Dance is probably the only reality dance show that me and Saif both have actually seen. And now will probably be the only show that we will watch. Thank you so much. The next question. हाय करीना, फैजान दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ हेल्पलाइन. करीना, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आपने कहा कि 5 साल में बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो आपको ऑफर हुए. पहला सवाल तो ये है कि मतलब इस शो में आपको ऐसा क्या लगा कि जो आपने इस पे आने का फैसला लिया. एंड दूसरी चीज़ ये कि आप जज भी कर रहे हैं तो कितना मुश्किल है, कितना टफ आपके लिए होने वाला है ये, मतलब किन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस करने वाली हैं और किन बेसिस पे आप जज करने वाले हैं? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही नर्वस हूँ बिकॉज पहले कभी किसी शो जज नहीं किया, इतना बड़ा शो इस प्लेटफॉर्म पे एट दिस लेवल ऑल्सो. एंड ऑनेस्टली कल हम लोग ने परफॉर्मेंसेज देखे एंड it is really going to be a tough call. I'm actually quite excited as well as nervous. I'm happy that, we have Bosco and Raftaar also. I think हम लोग तीनों की USP बहुत ही अलग है. जैसे Bosco is going to be focusing more on the technicalities of the dance. Raftaar is also a master of dance who knows so many different forms. So he'll be giving his take on that. Whereas I think मेरा focus सिर्फ, performance पे, expression पे होने वाला है. Because जैसे मैंने कहा कि my USP has always been about the energy, about the expression. Dance is not just about, कि चलो moves कर लिए, but face का expression भी perform करना वो भी बहुत important है. And whenever you watch someone dance, हम उनके पैरों पे नहीं, उनके face पे देखते हैं. तो वो dance face पे नज़र आना चाहिए, वो ही मेरा focus होने वाला है. Wow. Hi Raftaar. नमस्ते. नमस्ते. This is journalist Pooja. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप म्यूज़िक और डांस से जुड़े हुए हैं. हाँ जी. तो इस बार आप कंटेस्टेंट में क्या देखेंगे, किस तरह से उनको आप सिलेक्ट करना चाहोगे, खासकर आपके साथ जब करीना जैसी हो? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है क्योंकि मैं डांस और म्यूज़िक दोनों से रिलेटेड हूँ. तो टेम्पो, BPM, परफॉर्मेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ चलती है क्योंकि मैं स्टेज परफॉर्मर हूँ. मैं शोज़ करता हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास परफॉर्म करता हूँ जाके जिन्होंने मुझको पहले कभी लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा. तो हर टाइम एक नया ऑडियंस, हर टाइम एक नया क्राउड और हर टाइम उस क्राउड के हिसाब से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. यही झलक मैं इनमें देखना चाहता हूँ कि आपको स्टेज का डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर एक वो जुनून होनी चाहिए कि ये एक शुरुआत है, ये एक बड़ा मंच है जो आपको और ऊपर लेके जाएगा. उसके साथ आप क्या करते हो ये आपके हाथ में है और वो आपके रवैये से हमको पता लग जाता है कि आपकी दिशा किस ओर है. तो बस उसी चीज़ का इंतज़ार है शो पे. हाय करीना, पूजा सामंत हियर. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल इवन बॉलीवुड डांसेस में दे आर मोर लाइक एक्रोबैटिक. तो डू यू थिंक कि देयर लेस ऑफ
facial expressions and more of acrobatic? What is your take on that? वेल हमारे शो पे ऐसे नहीं होने वाला है बिकॉज वी आर टैपिंग, जैसे मैंने कहा कि कल हम लोग ने परफॉर्मेंसेस पहली बार देखा, ओपनिंग सेरेमनी शूट हुई है. वी हैव टैप्ड आई थिंक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस. कल इनफैक्ट एक क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस हुई थी which got a standing ovation from the judges, and that according to me was one of the best acts. So it's not just acrobatics, of course वो एक डांस का एक फॉर्म होता है एंड लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है. But I think Dance India Dance is that platform which encourages not just one form, whether it's contemporary, whether it's animation, whether it's robotics, whether it's classical, we're going to have it all. Hello, Bosco. That's right. Yeah, okay. My question, this is going to be a battle of the champions. How difficult is it going to be to judge it? It is going to be very difficult because we've got supreme talent and everybody comes with a style, everybody comes with a body language, everybody comes with an attitude. So it is going to be very difficult. But I think वो एक चीज़ हम देखेंगे कि उसको एक starman quality, एक showman quality जो रहने वाली, I'm going to check that out and definitely somebody who strikes will catch my eye. I think when Bosco sir is there, it's gonna be difficult actually. नहीं यार. And your film, of course. Oh, definitely will be a part of my film. Hello. Hi, Hello. hi, Hello. Raftar. Hello. Hi. Raftar, yo. So I wanted to ask, yo. My bad. Okay, so from being a contestant in DID doubles to your being a judge, how will you describe this journey according to you? See, it's a big move in my life, in my career. I'm walking towards a path that had just begun because always envisioned myself as a dancer, but music was my first love, and dance helped me make music because I would save money, go to the studio and everything. So I owe everything to dance, and especially to this stage because when I used to come on the Dance India Dance double stage 8 years ago, I used to rap back then as well. Like when we had our first group intro, that entire song was a rap song that was composed by me and this guy called Nilesh. So he had made the music, I rapped. So the journey has been, it's parallel. We have been walking together, and ever since then, it has helped me perform on stage as well. Like when I go on stage, it's not just me rapping or singing my songs. I can perform for them. I can dance, and that comes from the dancing background that I have. And this fear of not being afraid of the camera, like I'm not afraid of the camera now because I have faced so many cameras, so many lights on this stage that it has made me the man I am today. Hello. Guys, we're going to take two more questions. सवाल धीरज जी से है. मैं आरती सक्सेना. Sorry. या. Hi. मतलब एंकर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. लाइक उनको कॉमेडी भी करनी होती है, डांस भी करना होता है और एंकरिंग भी करनी पड़ती है. तो आप किस तरह से मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं इसके बारे में? जी आपने बिल्कुल सही कहा. एंकर एक सूत्रधार होता है शो का एंड मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली जब सामने इतने बड़े दिग्गज बैठे हों और स्टेज पे इतना सारा टैलेंट हो. तो भी करना होता है करीना. बिल्कुल वो कर लिया, वो हो गया है. सो एक कनेक्शन होता है हर किसी के बीच, कंटेस्टेंट्स से जजेस का कनेक्शन, जजेस का कंटेस्टेंट से, और उस कनेक्शन को मुझे मेंटेन करना होता है. जो भावनाएं हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो करेक्ट तरीके से पहुंचानी होती हैं जजेस तक, ताकि जिस तरीके की मेहनत वो कर रहे हैं वो करेक्ट तरीके से पहुंचे. उसके पीछे उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, सब कुछ. दैट्स माई जॉब. So I think anchor is also very important in these kind of shows and setups. और मेरा सवाल करीना जी से है कि आपके गाने देख के मतलब हम लोग ने थोड़ा बहुत डांस सीखा है. जैसे ये मेरा दिल और वो कौन सा है ना सॉन्ग चमक चलो. लाइक ये डांस ऐसे है कि कभी भी देखो तो मूड अच्छा हो जाता है. तो और जब आप स्टेज पे डांस देखेंगे फर्स्ट टाइम एज ए जज, तो सब आपको जिम्नास्टिक करते हुए नजर आएंगे, जंप करते हुए नजर आएंगे. तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और आपने जैसा कि बोला कि आप फेस एक्सप्रेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो आप किस तरह से जज करेंगे? आई थिंक जजिंग का अभी राउंड जो है अभी अगले हफ्ते से चालू होने वाला है. और जैसे मैंने कहा कि मैं खुद नर्वस हूँ क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट्स, इतना सारा टैलेंट. इट्स गोइंग टू बी क्वाइट टफ टू एक्चुअली give them points to judge them because सबकी अपनी अपनी खूबी होती है. तो this journey also is going to be, जैसे contestants का journey होने वाला है,
वैसे मेरा भी जर्नी होने वाला है उनके साथ साथ. मैं कंटेस्टेंट्स के साथ आगे बढ़ने वाली हूँ क्योंकि आई एम न्यू टू टेलीविजन, आई एम न्यू टू डांस इंडिया डांस. तो फॉर मी आई एम एज नर्वस एज देम. तो एक्चुअली आई एम गोइंग टू बी ऑन देयर साइड. सो आई डोंट नो, उनके हाथ पकड़कर, वो मेरे हाथ पकड़कर हम आगे डांस इंडिया डांस पे चलने वाले हैं. Guys, we take one last question now. Here. हेलो करीना जी. तीनों जजेस से मेरा क्वेश्चन है, हर्षल फ्रॉम नई दुनिया इंदौर, कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हर एज ग्रुप के, हर जॉनर के डांसर्स आ रहे हैं. क्लासिकल भी हैं, वेस्टर्न भी, सभी तरह के हैं. ऐसे में जजमेंट करना कितना मुश्किल होगा और किस चीज़ पर आप करेंगे जो कि सबके साथ जेन्युइन रिजल्ट दे पाएँ? मुझे ऐसा लगता है जो ये प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस के साथ कोई स्टोरी बोल पाएगा, आई थिंक वो जर्नी हम लोग कंप्लीट जर्नी मानेंगे. बिकॉज एक स्टोरी में सब होता है, डांस होता है, एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है. तो अगर वो कंप्लीट स्टोरी कह पाएगा, आई थिंक दैट्स व्हाट विल फुलफिल आवर जजमेंट. आके पूछ लो. माय क्वेश्चन इज फॉर करीना मैम. इंडिया जाना जाता है अपने कल्चर के लिए कल्चर के लिए जाना जाता है, जो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिला करके एक होता है. सो आपका फेवरेट जोन या फेवरेट पार्ट कौन सा है? और कल्चर की अगर बात करें, डांस फॉर्म की भी अगर बात करें, तो आपका फेवरेट क्या है? अभी तक तो मेरा फेवरेट, इट्स वेरी अर्ली टू आस्क. कल हमने चारों जोन्स के परफॉर्मेंसेस देखे, अलग अलग कंटेस्टेंट्स के. जैसे मैंने कहा कि ऑफ कोर्स एज अ पर्सनल चॉइस मुझे क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी दोनों अच्छे लगते हैं. बट क्लासिकल डांस में एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, उनकी जो टेक्निकलिटी भी है, उनकी अदाएँ भी है, बहुत अलग है किसी और डांस फॉर्म से. तो माई पर्सनल टेस्ट इज़ मोर टुवर्ड्स क्लासिकल डांस. बट ऑफ कोर्स जज होने के नाते वन कैन नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंसेज. आई एम गोइंग टू कीप अ वेरी वेरी ओपन माइंड एंड एन ओपन हार्ट ऑल्सो.